Namaste dear students, hope all of you are well. Stay home, stay safe. Actually in the previous video I have talked about the liquefaction of gases. The few topics which I have described in the previous video were the critical temperature, critical pressure and critical volume. These three things were already discussed in the liquefaction of gases. I hope all of you have remembered that how carbon dioxide gases has been liquefied and what was the critical temperature. If anybody would have remembered, then you can say me that what was the critical temperature. Can anyone? 30.98 degrees Celsius. It was the critical temperature of the carbon dioxide. What is critical temperature? Let me explain you again. When any gas converts into liquid, the highest temperature at which any gas converts into liquid is called critical temperature. The highest pressure at which any gas is converts into liquid. For that, as you will increase the temperature, pressure will be increased. Similarly, volume will be decreased, and whatsoever. So these three things are the main factors by which the gases changes. These are all the things already I have described you in the previous video. In this video, we are especially going to describe about the liquid state. First of all, what is liquid state? All of you may have heard in the previous to previous classes that how gases change into the liquid. You may have heard only about the condensation. Yeah, in the condensation process, as we cool to the vapor converts into the liquid. You may have seen, I hope that it was a very previous standard video, that as tea kettle, yeah, you may have seen. In the olden days, this type of tea kettle was coming. Yes? You may have seen, right? So now just suppose here there is a gas stove. In this gas stove, the Bunsen burner is heating to this tea. Till here the tea level is there. Okay? So this is the tea. As now you will see the vapor is coming out. Right? Here the vapors are coming. What I have done, I have taken a steel plate here and put here ice. Okay? These are the ice cubes. Okay? I have put here ice cubes. So what will happen, as this vapor will connect to this plate will convert these gases into the water droplets. Again, here put one vessel. You will see all these vapor are again being converted into the liquefaction. These things you may have heard in the earlier section. Now, because of what are the reasons, what are the physical properties of the liquid, why they convert, what are the reasons? As you can see, if you have your NCERT textbook, as it is written also, you know very well solid, liquid and gaseous. So you may have seen in the solid state, the intermolecular spaces are approximately neglected. There is no intermolecular space between the solid. But if we talk about the liquids, so there are some intermolecular spaces there, right? So, and gases, you know very well, one atom is here, another will be here. There are a lot of spaces between the two atoms. But if I talk about the liquids, then you can see that at least the two atoms are attached. They are not, in the gases, they are not having, you can say, the attraction forces. There is no attraction forces of atoms and molecules in the gases. But if I talk about the liquids, so they are attached with one atom to the other. That's why we say the liquid and gases are having which property? Fluidity property. Fluid. The liquids and gas are fluids. The reason behind this is the intermolecular spaces. As you know very well, just suppose these are the gases, okay? This is one vessel. In this small gases are there. Okay? These small gases, atoms are there which are not attracted by each other. Okay? At an ordinary temperature and pressure. Now, if the temperature and pressure is increased, here the pressure is also increasing, and from here the temperature is also increasing. Okay? As the temperature and pressure increases, so what will happen? Have you ever thought what will happen? These atoms will come closer to each other. As these atoms will come closer to each other, the atoms nuclear attraction force, because of the attraction forces, these atoms will bind up with each other with the form of fluidity nature, and then they will convert into liquid.
So for this thing was only about the nature, that how liquid becomes. Generally, if you think that gas can become liquid, it's not possible. You may have seen the examples at your home also. If you are having a refrigerator, in the refrigerator, if you will see the water bottle, it's not having water droplets out of the bottle. But what happens as you take out that bottle from the refrigerator, as you have taken in your room, you have taken out from the refrigerator, so you will see the water droplets at the outside of the water bottle. The reason? What are the reasons? Just suppose inside it was a cooling temperature, the temperature was very low. As it came outside, the temperature has been increased. As the temperature has been increased, now that vapor or that gaseous molecules has converted into the liquid. Got it? So you can see this experiment directly at your home without any misconception. You can see that how gases change into the liquid. It's very easy. Just suppose that you have taken any gases, you can say you want to convert any gas into the liquid, carbon dioxide gas, as it is an example also of our NCERT. In the previous video, in the liquefaction of gases, I have told you about the critical temperature, critical pressure and critical volume, how carbon dioxide change into the carbon dioxide liquid, not carbon dioxide gas, it turns into carbon dioxide liquid. You know very well, solid carbon dioxide is also known as dry gas, right? So similarly, if I talk about, so you can see that how do they convert. If we generally take a conception, अगर सीधा सीधे हम लोग ये concept लेना चाह रहे हैं, I want to just think about that, how do these things happen? You have to just assume. See, in this here also, in this whole room, the atoms are freely moving anywhere. In this 10 by 10 room, the atoms are moving freely anywhere they are moving. But as I increase or decrease the temperature, just suppose I want to feel cool in my room, I'll on the AC button. As I on, what will happen? I will close all the windows, all the doors, wherever the air should not go out. So what will happen? After half an hour, my room will be very cool, right? As my room will be very cool, I wear my specs, and within 45 minutes, as I am very cool now, as I am going to outside of this room, so you will see on my specs glass, vapor is there. Then I have to rub that vapor, and then again I have to wear the specs. The reason, you can see how these gases change into the liquefaction. Increasing or decreasing temperature, see, remember, here as I have told you, in the critical temperature, the highest temperature at which gas turns into the liquid. Highest temperature, generally what we think, we cool to the temperature. If you, as I have given you the example of the refrigerator, inside the refrigerator they are in the form of gases, but as you take out, it converts into the liquid. So it doesn't seem that only by cooling only the gases should convert into the liquid. Remember this word, many of the students have misconception. No sir, only by cooling only we can convert the gases and atoms into the liquid. It's not possible. That's why here the word has been described as a critical temperature. Critical temperature, as already I have discussed, that it is the highest temperature at which any gas converts into the liquid. Got it, everyone? So now our next topic is the physical properties of the liquid. As you have already understood about the liquid state, what are the sections in this liquid state, what are the properties of the liquids which we are going to study in this video are vapor pressure, surface tension and viscosity. Now if anybody will ask you, what is vapor pressure? Have you heard the word vapor pressure or not? So our topic is vapor pressure. Before describing this vapor pressure, you know very well what is vapor pressure. There is one equilibrium vapor pressure and saturated vapor pressure. As you may have seen that your mama, when she cooks vegetable, in the kadahi she puts vegetables, she puts oil, she puts spices, and after frying all the vegetables she put water also. After putting the water, what she do? She cover with one thali or any other plate. That what will happen? Just suppose, as I have told you, that what she has done, she has just taken the means vaporization. For the process of vaporization, what she have done, she have taken one thing. This is the kadahi. You know very well kadahi. What is kadahi, right?
So this is correct. Okay. And now she had put here all the vegetables are there. So different vegetables, and till here she have put the water level. Okay. Now here already it's boiling. So what will happen? Now here the vapor pressures will increase, and in this plate, as it is covered on this kadai, so what will happen? The vapor pressure will not go ahead, and when this both the equilibrium vapor pressure means surrounding and this system, this both the pressure, when it will become equal, then only it will start boiling. So this is called equilibrium vapor pressure, or it's also known as saturated vapor pressure. Okay, so just understand what is equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure. So I hope all of you have understand about this saturated and equilibrium vapor phase. So first of all, just think, why vapor? Means if you take a knowledge, then you must have a deep knowledge about any concept. See what happens, the students are taking knowledge but they are not clearing their concept. So that's why I like to first of all inform you how to this vapor pressure, the word here itself increase. See, two things we are going to study, either in liquid or in gases. Either in liquid or in gases. So what will happen in liquid or gases? You know very well. The liquid atoms and molecules are interlinked with a minimum space, and gases are freely to move anywhere. Both are having a nature called fluid. Now, just suppose any liquid is there. Okay, just suppose this is the layer of liquid, and we have started heating. Means we have increased the temperature. As we have increased the temperature, what will happen in this vessel? You know very well, this liquid will, because as we increase the temperature, the pressure of the atoms and molecules also increases. कहने का मतलब क्या होगा? Means as I increase the temperature, the pressure also increases. Pressure increases as they convert into the vapor form. मतलब means as the liquid is converting into the gaseous state, means as we increase the temperature. अब आप खुद सोच लो, आपके मम्मी चाय बनाने से पहले क्या करती है? वाटर को बॉईल करती है, राइट? तो वाटर बॉईल करने के बाद आप देखना, जैसे ही वाटर जब मतलब नॉर्मल है तो वाटर है एकदम नॉर्मल वाटर, जैसे उन्होंने गैस स्टोव पे दिया और उन्होंने गैस स्टोव को ऑन किया, हीट किया, तो होता क्या आप देखना कि जनरली वो मतलब वहां से जो है वेपर के फॉर्म में वो गैसियस निकलना चाहिए, मतलब धुआं सा आप लोग देखना स्मोक टाइप का, फॉग टाइप का जो है निकलना चालू। वो कुछ और नहीं है, वो लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज करने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण वो वेपर का फॉर्म प्रेजेंट किया। अब खुद सोचो, कोई भी मनुष्य जो है ना सॉलिड फॉर्म में, इसको लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी किया जा सकता है। अगर आप कंसेप्ट के ऊपर जाओगे ना, तो एक लूसी नाम का मूवी था, लूसी, तो उसमें जो है एक कैल्शियम सल्फाइड टैबलेट आता है, जो टैबलेट को खाने से ऑटोमेटिकली आप उसके देखना उसके बॉडी के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इतना इंक्रीज होने लगते हैं, इतना इंक्रीज होने लगते हैं, उसका पूरा शरीर फट जाता है। अगर कभी समय मिले आप लोगों को तो ये मूवी जरूर देखना, लूसी। पूरा केमिकल कंसेप्ट बेस्ड मूवी है, फुल ऑन लूसी मूवी। या एज यू विल सी दैट मूवी, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रियल वर्जन इज इन इंग्लिश, हॉलीवुड मूवी इट इज, but now it has been dubbed into Hindi, Malayalam, Telugu, all the languages. But what I mean to see you, that as these things convert into solid to vapor, liquid to vapor, solid to vapor, you may have heard the process. Can you tell me? Sublimation process. Directly solid to vapor form. Camphor, when we burn a camphor, it converts directly solid to gaseous state. So that was sublimation process. But if I talk about the liquefaction or vaporization, so now here question, as I have told you, the equilibrium vapor phase. Equilibrium vapor phase means the pressure of atmospheric pressure and the things
which you are turning them to the vapor. So here what will happen, as right now the atmospheric pressure, atmospheric pressure, this is your surrounding, okay, and this is your system, here's pressure. So both are different ना. अब आप खुद सोचो कि वातावरण में टेम्परेचर कितना है, अलग है, आपके रूम का टेम्परेचर अलग है। उसी तरह से अगर आप मान लो कोई भी चीज को गर्म करते हो, वो लिक्विड कोई आपको बॉईल करना है तो सडनली नहीं बॉईल होता। उसके लिए क्या होना पड़ता है, उसके लिए सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को प्रेशर जो है, दोनों का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक जो है मतलब आपका कोई भी लिक्विड बॉईल नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ होता कैसे, हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस। अब खुद सोचो, यहाँ पर ये जो है लिक्विड है, लिक्विड आपको दिख रहा है बिकॉज लिक्विड का डेंस ज्यादा है, ये सारा लिक्विड है, राइट, ये हमारा लिक्विड है, ये आप देख पा रहे हैं बिकॉज दे आर डेंस, घनत्व इसमें जा रहा है, ओके। सो यू कैन सी दिस लिक्विड, ओके, बिकॉज दे आर हैविंग डेंस। नाउ जस्ट सपोज नाउ दिस लिक्विड्स हैव स्टार्टेड वेपराइजिंग, ये वेपराइजेशन प्रोसेस है जिससे ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप समझ लो ये वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये समझ जाओ किचन वाला एरिया, जो किचन का जो सीलिंग होता है, देखना पूरा वेपर वहां तक पहुंचता है। किचन हमेशा एकदम इतना गर्म क्यों रहता है, आपकी मम्मी या जो भाई है वो जब खाना बनाती है तो देखना उसको बहुत पसीना आता है। तो रीजन क्या होता है कि ये सारा वेपर जाकर के सीलिंग में टच करता है, इस दोनों को एक करता। अब क्या होगा, जैसे ये सीलिंग में टच करेगा, यहाँ पे आया ये टच कर दिया, ये सारा वेपर यहाँ पे आया, ये सीलिंग में टच कर दिया, वापस ये रिटर्न जाएगा, राइट। पढ़ा था आप लोगों ने ये, मतलब हम लोग ऊपर में जो है वेंटिलेटर्स क्यों लगाते हैं, या फिर एसी को हम लोग सीलिंग के पास क्यों नहीं करते। अगर आप लोगों ने कन्वेक्शन ऑफ एयर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है कन्वेक्शन ऑफ एयर, तो अब समझ लो यहाँ से जैसे ही ये हॉट एयर जो वेपर है वो यहाँ पे टकराया सीलिंग के पास, वापस हॉट एयर आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ये लिक्विड हीट के कारण वेपर फॉर्म में आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा, a time will come when the dense of liquid and the dense of gas both will become equal। एक समय ऐसा आएगा जब लिक्विड का और गैस का दोनों का डेंस एक जितना हो जाए। पूछोगे सर ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। जैसे मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया था, सपोज करो कि ये कढ़ाई में वाटर था, ठीक है, ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर में यहाँ पर इतना तक वाटर था। सो एज दे आर बॉइलिंग द वाटर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बॉइलिंग द वाटर। तो होता क्या है, जस्ट सपोज करो कि ये कढ़ाई है, इसमें यहाँ तक जो है वाटर है, ठीक है, और इसके ऊपर से ये एक प्लेट है, क्या ये प्लेट है। तो अब जैसे तुम जानते हो यहाँ पर हमने इसको हीट करना चालू किया, जैसे ही हम इसको हीट करना चालू करेंगे वाटर क्या होगा, वेपराइज्ड होकर के यहाँ से देखना वेपर के फॉर्म में ये उड़ेगा। और इसका लेयर चूंकि बहुत ही नजदीक है, यहाँ पे समझ जाओ जिस तरह से हमारा किचन होता है, हमारा सीलिंग होता है, वैसे ही यहाँ से, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी मींस नो मोर डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये टकराएगा तो अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रेशर इसको मेजर करना है कि भाई ये जो सराउंडिंग है इसका प्रेशर कितना है और हमारे बर्तन में जो है पानी उसका प्रेशर कितना है, ये दोनों जब, क्योंकि ये हमारा सराउंडिंग आता है, और इसको जैसे ही हमने क्लोज्ड सिस्टम कर दिया, इसको पैक कर दिया, तो पैक करने के बाद क्या होगा, ये दोनों, अब यहाँ से लिक्विड जो है वो डेंसर है, तो लिक्विड जो है अपना वेपर प्रेशर इस तरफ ऊपर उठाएगा, गैस जो है यहाँ तक रखेगा, इसमें ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस कन्वर्ट होकर के नीचे जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसका वाटर का जो वेपर प्रेशर है
इस प्लेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे ये वेपर प्रेशर के इक्वल में हो जाएगा तुम्हारा ये वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कर। इसीलिए देखना जल्दी क्या होता है, जैसे तुम लोग देखना कि अगर सब्जी को बिना प्लेट वाले मतलब बिना ढक करके अगर बॉईल करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर तुमने वाटर देने के बाद इसके ऊपर में एक प्लेट डाल के कवर कर दिया तो वेरी सून इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और जैसे ही तुम इस प्लेट को वापस हटाओगे तो फिर कुछ देर समय लगता है। देखना जितना स्पीड से वो बॉईल हो रहा था वो बॉइलिंग जो है स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वापस वो सब्जी या वाटर जो भी है वो प्रेशर वो दोनों इक्वल नहीं होता है, तो फिर उसको कुछ देर टाइम लगता है, फिर वापस दोनों प्रेशर जब बराबर हो जाता है देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ज्यादा नहीं, 0.4 डिग्री सेल्सियस, 0.4 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस का अंतर। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 99.6 डिग्री सेल्सियस, 99.6 डिग्री, मतलब इसमें से माइनस कर दो तो ये इतना डिग्री। तो दोनों का ये मतलब जनरली अगर केल्विन में तुम निकालोगे तो ये 273 हो जाता है, राइट। और 273 में से तुम मतलब 0.4 हटा दो, माइनस करो, सॉरी 273 प्लस 100 डिग्री ना तो 373, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273, तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 373। 373 में से तुमने 0.4 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 372.6 डिग्री सेल्सियस हमारा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है 373 केल्विन, ये वाटर का है, याद रखना वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी पूछता है ना कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब जब कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉइल करने लगता था, लेकिन इसके पीछे टेम्परेचर के साथ एक वेपर का भी रिलेशन है, प्रेशर का भी रिलेशन है, जो मैंने तुमको अभी जस्ट समझाया कि किस तरह से लिक्विड उस प्रेशर को रीच करता है, उस प्रेशर के ऊपर में अप्रोच करता है, पहुंचता है, उसके बाद वो लिक्विड बॉइल होना चालू करता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये वेपर प्रेशर का जो पूरा पार्ट पढ़ाया गया, इसके पीछे एक और रीजन है। कभी आप लोग अगर मतलब हाई हिल्स पे गए होंगे, हाई हिल्स मतलब समझ गए ना, जैसे बहुत लंबे लंबे जो पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, शिमला वगैरह में कभी जाओगे तो मतलब अगर ऊपर में आप जाओगे ना तो वहां पर लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर में खाना इजीली बन जाता है। मतलब अगर जो अभी तुम गुजरात में या महाराष्ट्र में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया के किसी या ऑल ओवर ग्लोब के किसी भी कोने में हो और वहां पर जो आप हीट करके जो भी चीज खाना खाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो नॉर्मली जो टेम्परेचर चाहिए, जो प्रेशर है वो होता है, लेकिन जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, अधिक ऊंचाई पे जाओगे, तो वहां पे क्या होगा कि लो प्रेशर अब जो है आपका इजीली वहां पर खाना, अगर यहाँ पे आपका 15 मिनट में बन रहा है तो वहां पे 5 मिनट में बनेगा। इसीलिए देखना माउंटेनर्स जो होते हैं वो सिलेंडर वाले मास्क और सिलेंडर का ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन कम हो जाता है। आज मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटस पढ़ा था कि जो बाज होता है, ईगल जो होता है, ईगल पे भी क्रो कौवा जो होता है वो ईगल के ऊपर में बैठ करके उसको मतलब उसके बीक से उसको मारते रहता है, लेकिन वो ईगल जो है वो घबराता नहीं, उसको मारने देता, और वो और हाई और हाई और हाई, इतना ज्यादा हाई मतलब वो चला जाता है कि अब जो क्रो है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और वो सांस लेने में तक और हाई हो, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली ध्यान रहता है उसको बीटिंग करने में, वो हाई ले जा करके एक ऐसा समय आता है जो क्रो जो होता है वो डेथ कर जाता है। एक्चुअली ये एक स्टेटस था जो इंस्पिरेशनल था कि उसी तरह हमारे लाइफ में भी जो है डिफिकल्टीज आते हैं, तो आप डिफिकल्टीज को वो कॉय की तरह, वो क्रो की तरह उसको डंक मारने दो, आप ऊंचे उठते जाओ, अपने कर्म के ऊपर में ध्यान करो, फोकस ऑन योर एजुकेशन, फोकस ऑन योर स्टडीज, अ टाइम विल कम व्हेन योर ऑल द प्रॉब्लम विल बी रिसॉल्व, प्रॉब्लम्स विल बी ओनली डाइट, राइट। आप जेठालाल तो हो नहीं कि हर जगह प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इसी तरह से ये जो है आपको वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर में नॉर्मल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा आपने पढ़ लिया। उसके बाद
अगर आप जाओगे, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे जितने भी सीजर मतलब जो हॉस्पिटल्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सीजर, प्लेट्स वगैरह, यूटेंसिल्स, तो उनको वॉश करने के लिए, अदरवाइज आपने घर में आप जो ओवन लाते हो जिसमें केक बनाया जाता है, या फिर आप कभी अगर केमिकल लैब्स में गए होंगे, केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पर बर्तनों को जो धोने के लिए गर्म पानी यूज किया जाता है। वाई दिस वाटर आर स्टीम, इसका पीछे रीजन क्या है और क्यों किया जाता है? ये वेपर प्रेशर क्या कर सकते हैं इसमें? वो वेपर प्रेशर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने में वो मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद सोचो कि अगर पानी से वो गैस बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर से गैस बन रहा है, मतलब एटम्स जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, एटम्स एक दूसरे से मतलब अलग अलग हो रहे हैं, दे आर बीइंग सेपरेटेड। जो लिक्विड फॉर्म में जो एक दूसरे से अटैच थे, मतलब टाइटली नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा मोड़ा स्पेस था, लेकिन अटैच थे एक दूसरे से, बट गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में पूरा अलग हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आप किसी भी बर्तन को धोते हो, या फिर देखना कभी किसी को बहुत फीवर हो जाता है या फिर बहुत बीमार रहता है, तो उसको गर्म पानी से नहलाया जाता है। रीजन इज ऑल द बैक्टीरिया विल बी वॉश्ड, it will convert into the gaseous or vapor phase, so they will be vanished. Got it? So this was our vapor pressure. अब दूसरा है हमारा सरफेस टेंशन, राइट? हाँ, एक चीज और है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, ये वेपर प्रेशर और लिक्विड के बीच की जानकारी भी हमें देती है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जैसे ही आप लिक्विड मतलब को बॉईल करोगे, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर बिकम्स द सेम, मतलब उसका डेंस, द लिक्विड का जो डेंसिटी है और वेपर प्रेशर का जो डेंस है, वो दोनों जब इक्वल बन जाते हैं, द क्लियर बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर्स। तो ये जो बाउंड्री था, जो लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड वाला जो बाउंड्री था, एक फेज जो था, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इनका ये लेयर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। कौन सा टेम्परेचर कहा जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है? बिकॉज यहां से जो लिक्विड जो इवापोरेट्स हो रहे थे, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, और वेपर का जो लेयर था, मतलब इस दोनों का, क्योंकि ये ज्यादा डेंस था तो इसका दिख रहा था कि यहाँ से जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर से फिर वापस जो है जो ये लिक्विड फॉर्म में गिर रहा था, तो उन दोनों का एक लेयर था, जिस लेयर से वो क्या करते हैं, मतलब दोनों इक्वल हो जाता है। जैसे वो इक्वल हो जाएगा ना, लिक्विड का भी जो लेयर था और वेपर का भी जो लेयर था, वो दोनों इक्वल हो गया, तो ये लेयर डिसअपियर हो जाता है, और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जैसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसी तरह लिक्विड गैस में कन्वर्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? व्हाट इज वेपर प्रेशर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो है हमारा नया टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये भी हमारा लिक्विड वाला है कि आखिर सरफेस टेंशन क्या है। सबसे पहले व्हाट इज सरफेस या व्हाट इज टेंशन। अब लोगों को पता है कि लिक्विड जो जनरली होते हैं, आप कह सकते हो कि अगर कभी आप रिवर में स्विम करने के लिए गए हो, या स्विमिंग पूल में आप लोगों ने कभी स्विम करने का अगर मौका मिला होगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा। कभी आपने सोचा है कि जैसे मान लो ये हमारा रिवर है, इस रिवर में आपने 1 जग ऑफ वाटर, जग जानते हो, मग एंड जग, ये आपका जग, ओके, इसमें आपने ये रिवर से, इस रिवर में से आपने 1 जग आपने यहाँ पर वाटर दिया, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो लिक्विड होते हैं, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस होता है, राइट, तो मतलब कभी भी आपने दिमाग लगाया कि अगर मान लो मैं इसमें से 1 जग वाटर निकाल रहा हूं, तो क्या ये एटम सेपरेटेड होते होंगे? मतलब एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन दैट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स in liquid which are combined, if you are removing some of the parts of that liquid, do these atoms and molecules breaks the bond? क्योंकि आप देखना जनरली होता क्या है कि अगर आप इस रिवर में से 1 जग वाटर निकाल लिया, वापस भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लेयर सेम पड़ रहा है। रीजन क्या होता है?
कभी आपने सोचा व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज कि आप किसी भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को रखते हो तो उस शेप का हो जाता है। रीजन क्या है? व्हाई डू दे बिकम ऑफ दिस? क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। अगर रिवर में था तो रिवर के शेप का था, जग में आया जग के शेप का, बकेट में गया बकेट के शेप का, ग्लास में गया ग्लास के शेप का, कप में गया कप के शेप का। व्हाई? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, चाहे उनके बीच में जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो स्पेस है, इसी कारण से वो होते हैं या कोई और भी कारण है? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज कि आप जानते हैं कि नेट फोर्स किस तरफ लगता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप, जैसे मान लो ये बोर्ड है मेरा, व्हाइट बोर्ड इधर की तरफ है, आपने सोचा कि अंदर की तरफ इसका फोर्स लग रहा है या बाहर की तरफ कुछ मेकअप कर? जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, मार्कर को मैंने यहाँ पे स्टैंड अप कर दिया, राइट? तो अब आपको पता है कि मार्कर का ये लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ फोर्स लग रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, एक सीधा सीधी समझ जाओ कि ये एक सरफेस है, जिस सरफेस पे कुछ, जैसे मान लो डस्टर मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मेरा डस्टर, ओके? तो इस डस्टर को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो लेफ्ट और राइट फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। बट व्हाट अबाउट दिस इनवर्ड फोर्स? इसको कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? तब तो नेट फोर्स जो हो गया वो डाउनवर्ड्स हो गया, क्या कि नीचे की तरफ जो मेन फोर्स लग रहा है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि इट इज वेल नोन the fact that liquid assumes the shape of the container. Why is it then small drops of mercury form spherical bead instead of spreading on the surface? Why do particles of the soil in the bottom of the river remain separated? All these phenomena are called surface tension. A molecule in the bulk of liquid experiences equal intermolecular forces from the sides. The molecule therefore does not experience any net force, but not the molecules of the surface of the liquid. Net attractive force is downwards towards the interior of the liquid due to the molecules. अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, कभी आपने दिमाग लगाया कि आखिर सचमुच में why waters are spherical? पानी की बूंद जनरली देखना इस टाइप का होता है, जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है ऐसे ही, जैसे हमारे टीयर्स आंख से निकलता है तो उस सब का ऐसे ही शेप होता है, ये सब वाटर। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि इस तरह का शेप क्यों था? Have you ever thought why water droplets are spherical? The reason is the net force is downwards. ये जो नीचे की तरफ जो आप बड़ा शेप देख रहे हो, रीजन यही है कि भाई इक्विलिब्रियम फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है इसलिए वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। रीजन इसकी यही है कि आप सरफेस, ये सारा का सारा फेनोमेनन है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का मतलब हो गया पृष्ठीय तनाव। सरफेस, एक सरफेस के ऊपर में कितना टेंस लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, अपवर्ड्स लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है, राइट साइड, किस साइड लग रहा है, कितना इक्वल्स में लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड में लग रहा है। तो ये सारा का सारा फेनोमेनन, जितना भी फेनोमेनन अभी मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे किस फेनोमेनन के कारण होते हैं? ये सब के सब जो है सरफेस टेंशन के कारण होता है। आपको पता है कि लिक्विड्स जो है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। रीजन इसका ये है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस experiences a net downward force and have more energy than the molecules in the bulk, which do not experience any net force. Therefore, liquids tends to have minimum number of molecules at their surface. If the surface of a liquid is increased by pulling a molecule from the bulk, attractive forces have to overcome. This will require the expenditure of energy, and the energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is defined as
सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब आप खुद सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस पर जो टेंस लगता है, जो तनाव लगते हैं, रीजन क्या है उसका? नेट फोर्स कितना, मतलब कितना होगा नेट फोर्स? अगर मान लो यहां पर खुद सोचो कि अगर मान लो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो न्यूटन ने डिस्कवर किया, तो उसके पास ऐसा तो दिमाग लगाओ ना कि भाई सरफेस जो है, अब खुद सोचो यहां पर जैसे मैंने तुमको बताया कि ये वाटर्स जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, इसीलिए वो नीचे की, ये जो वेव्स का जो मेन रीजन है, ये वेव्स में जो ये तुम जो देख रहे हो, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा ट्रफ और क्रस्ट के बारे में, है ना? तो ये तुमको पता है कि ये नीचे क्यों जाता है? कभी सोचो व्हाई दे गो डाउन, व्हाई दिस वेव्स आर इन दिस फॉर्म? द रीजन इज सरफेस टेंशन, द रीजन इज सरफेस टेंशन। अब तुम कहोगे सर ये नीचे जाता है तो फिर ऊपर क्यों जाता है? कह सकते कि सर व्हाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, व्हाई दे आर गोइंग अप? पूछ सकते हो तुम मुझसे क्वेश्चन कि सर ये ऊपर क्यों जाता है? तो मैं तुमको इसका जवाब देता हूं, मैं इसको बताऊंगा तुम्हें इसका मेन रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि आखिर ये जब इक्वल फोर्स लगते हैं तो इनके नीचे में बहुत सारे लेयर्स हैं, एक ही लेयर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि पानी जो है तुम्हारा देखो 1 2 3 4 5, इसके नीचे में नंबर ऑफ लेयर्स है। तो होता क्या है, जैसे ही ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर में टेंस किया तो ये एक ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये जो तुम देख रहे हो यही तुम्हारा वेव्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया क्या वेव्स का फॉर्मेशन करता है? ये जो है आपका लिक्विड्स जो है ये आपको लेमिनार फ्लो करते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस लेमिनार फ्लो is of the surface tension. A molecule in the intermolecular forces from all the sides. From all the sides, the molecule therefore does not experience any net force. But for the molecule on the surface of liquid, the net attractive forces is towards the interior of the liquid. यही रीजन है जो अब मान लीजिए यहां से अगर आपने एक जग पानी निकाला, तो एक जग जो आपने पानी निकाला यहां से, ये जो एक जग निकाले हो, तो इसको यहां पर सरफेस एनर्जी को मेकअप करना पड़ेगा। यहां पे वापस लेयर को बराबर करने के लिए यहां पर 1 यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी लगेगा। तो 1 यूनिट सरफेस एनर्जी जो लगेगा, तो उसका कोई आपको पूछ सकता है कि सर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका अगर डायमेंशन जो है एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया, कितना एनर्जी लगेगा? तो ये जो एनर्जी सरफेस एनर्जी जो है आपका, एनर्जी को जनरली हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो Jm-2। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया? कोई भी आपको पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी, तो आप कह सकते हैं इट्स डायमेंशन इज जूल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इट इज द फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये सरफेस एनर्जी को आप डिफाइन अगर करना चाहें तो आप उसको इस तरह से लिखा सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं नोटबुक में तो आप लोग लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग per unit length, the force acting per unit length। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन कहेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको जनरली जो डिनोट किया जाता है सरफेस टेंशन को, वो गामा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सरफेस टेंशन को गामा से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? द फोर्स एक्टिंग फॉर द फोर्स जो है एनर्जी के रूप में आप जानते ही हैं कि भाई एनर्जी लगाएंगे तो ना होगा, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
तो भाई आप फोर्स लगा रहे हो तो एनर्जी लगा रहे हो अपॉन एरिया, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और अगर आप इसका ग्रीक लेटर में गामा के रूप में आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इसका डायमेंशन किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट अगर लिखे तो न्यूटन पर मीटर। लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम, जब सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन द सरफेस एनर्जी विल बी मिनिमम। स्फेरिकल शेप सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, यही रीजन है कि जो आपको मैंने बताया कि वाटर का ड्रॉपलेट्स क्यों स्फेरिकल होते हैं, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। यही रीजन है कि मरकरी का जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। कोई भी शार्प ग्लास, यस ये बहुत ही अच्छा रीजन बता रहा हूँ, जैसे तुम लोग देखना कि ऑफिस में जनरली जो है ना ग्लास लगे होते हैं, तो शार्प ग्लास जो होते हैं मतलब ये कांच का जो ग्लास होता है उसको जो है ना इस तरह से यहाँ पर वो लोग सरफेस टेंशन, यही रीजन है ये ग्लास के कांच को जो है ना पॉलिश क्यों किया जाता है। उसको देखना वो एक वेल्डिंग वाला जो फायर वाला होता है उससे इसको पॉलिश करते हैं। क्यों पॉलिश करते हैं, यही रीजन है कि वो सरफेस टेंशन का ही। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं, द लिक्विड टेंड्स टू राइज इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। रीजन है कि लिक्विड टेंड्स टू राइज द कैपिलरी of surface tension. This is the reason that the sharp glass edges are heated for making them smooth. On heating, the glass melts and the surface of the liquid tends to take the rounded shape at the edge, which makes the edge smooth. This is called a fire polishing of the glasses. इसको कहा जाता है फायर पॉलिशिंग, मतलब पॉलिश जो किया जाता है फायर से, ताकि ये कांच जो एकदम किसी को गड़ ना जाए, किसी के हाथ से ब्लीडिंग ना हो जाए। वही रीजन है इसको स्मूथ फायर स्मूथ पॉलिशिंग किया जाता है। और यही रीजन है जो मैंने तुमको बताया सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की वजह से ही ये पूरा का पूरा कांच का ग्लास क्या होता है, फायर स्मूथ पॉलिश की वजह से वो एकदम पॉलिश्ड हो जाता है। तो लिक्विड टेंड्स टू राइज or fall in the capillary because of the surface tension. Liquid wet these things because they spread across their surfaces as the thin film. Moisture soil grains are pulled towards because the surface area of thin film of water is reduced. It is surface tension which gives stretching property on the surface of the liquid. On flat surface, the droplets are slightly flattened by the effect of gravity, but in the gravity-free environment, drops are perfectly. हाँ याद रखना, तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर कि वाटर का ड्रॉपलेट्स आप बोलते हो स्फेरिकल लेकिन इस तरह का होता है, तो ये रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो वाटर का एक्यूरेट शेप स्फेरिकल होगा, गारंटी दे रहा हूं। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन दे आर लाइक दिस, यही रीजन है। अगर आप लोगों को पूछे कि सर आप 100% तो नहीं होता, हम लोग ऊपर से पानी को गिरा दे तो इस शेप में गिरता है। द रीजन बिहाइंड इट इज द ग्रेविटेशनल। अगर ग्रेविटेशनल फ्री रहेगा, ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट रहेगा, तो वहां पे वाटर का ड्रॉप कैसा होगा, परफेक्टली स्फेरिकल होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड depends on the attractive forces between the molecules. When the attractive forces are large, the surface tension is large. Increase in temperature increase the kinetic energy of the molecules, and effectiveness of the intermolecular attraction decreases, so the surface tension decreases as the temperature is rising. इसका मतलब हो गया जैसे ही ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर में फोर्स ज्यादा लगाओगे तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करेगा, और जैसे वो काइनेटिक मॉलिक्यूल को इफेक्ट करेगा the attraction force will decrease, surface tension will decrease and temperature will increase. तो ये पूरा का पूरा मामला था हमारा किसका, सरफेस टेंशन का। अब लास्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था विस्कोसिटी के बारे में, या फिर जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, कभी तुमने सोचा है कि आखिर ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? इस सब के पीछे जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, इस सब का जो डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में हमें जानना होता है। क्यों सारी चीजें होती है, रीजंस क्या है, जितना भी साइंस में पढ़ते हो सबका एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। तो कोई पूछेगा तुमको व्हाट इज विस्कोसिटी, ये भी एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है।
अब पूछ सकते हो कि सर ये कौन सा प्रॉपर्टी है लिक्विड का, क्या करता है ये, कौन सा प्रॉपर्टी, किस तरह से ये यूज करता है, ये विस्कोसिटी के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो। ये विस्कोसिटी क्या है, ये रेसिस्टेंस फ्लो को मेजर करता है। जो इंटरनल फ्रिक्शन होते हैं लेयर्स के बीच में, क्या कि कोई भी फ्रिक्शन के कारण जो इंटरनल लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर में स्लिप कर गए, लिक्विड फ्लो हुआ, इनका जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, एक दूसरे के एटम्स मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, जो रेसिस्ट करता है कि जो इसके लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर में जो मूवमेंट होता है, ये एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज अ property of liquids which measures the resistance of flow which arises due to the internal friction between the layers of fluids as they slip past from one another while liquid flows. Strong intermolecular forces between the molecules holds them together which resist movements of layer past one another. When a liquid flow over a fixed surface of a layer molecules in an immediate contact, the surface is stationary. The velocity of the upper layer increases and the distance of the layers from the fixed layer increases. This type of flow in which there are regular gradation of velocity is passing from one layer to the next is called laminar flow. If we choose any layer in the flowing liquid, the layer above it accelerates and it flow, the layer becomes the retarded flow. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये विस्कोसिटी है क्या। ये एक लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में इनके जो लेयर्स होते हैं वो स्लिपरी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर में किस तरह से फ्लो करते हैं, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो किस तरह से एक दूसरे को रेसिस्ट करके रखते हैं, कैसे इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर में फ्लो करके, जिसको मैंने बताया ये लैमिनार फ्लो है, किस तरह से ग्रेडियंट इनकी वेलोसिटी चेंजेस होती है। तो आपको पता है कि इनका जो चेंज अमाउंट होगा, जैसे मान लीजिए u है, जस्ट सपोज करो u, ये ऊपर बढ़ा तो u प्लस डी यू, नीचे गया तो u माइनस डी यू। तो अगर कोई पूछेगा कितना बढ़ा कितना घटा, रेस्पेक्ट में बोलो मुझे आखिर कितना ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं ये जो ग्रेडियंट चेंजेस है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ du बाय dz। अब पूछोगे सर ये du बाय dz क्या है? डिफरेंशिएशन है भाई, कितना चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए u प्लस डी यू, नीचे में u माइनस डी यू और बीच में आप देख रहे हैं u। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्लिपरी प्रॉपर्टी है, या तो ये अप भी हो सकती है या डाउन भी हो सकती है। तो u प्लस डी यू एंड u माइनस डी यू। तो अगर मैंने पूछा आपको कि वेलोसिटी का जो लेयर है वो कितना डिस्टेंस, यहाँ पे ये dz जो है ये वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, इट इज the velocity of the layers at a distance dz which is change in the value du, change in the value du, ये du change value है, dz distance है। इतना आप समझ गए। अब आप मुझको पूछोगे सर अगर ज्यादा फोर्स होगा तो एरिया ज्यादा होगा या कम होगा? फोर्स ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बताओ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और नॉट? यस भाई। ये क्या है? ये एरिया के कांटेक्ट में जितना एरिया रहेगा उस हिसाब से अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो भाई एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा तुम लोग देखना, अगर बहुत ही हैवी फॉर्म में वेव्स आते हैं तो उस वेव्स का एरिया भी ज्यादा होता है, राइट? और जब कम वाला आता है तो उसका एरिया कम होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये जो ग्रेडियंट चेंज है, जो वेलोसिटी और डिस्टेंस का जो है वो क्या हो, तुमको पता है कि जिस तरह से फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी तरह से ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा du बाय dz। समझ में आया? अगर आप दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू du बाय dz। और जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो कांस्टेंट लगता है, तो ये पॉइसे a इंटू du बाय dz होगा या नहीं होगा? बताओ। प्रोपोर्शनल हटाते तो हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो न्यू टाइप का शेप जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये विस्कोसिटी कांस्टेंट है। क्या है ये? विस्कोसिटी कांस्टेंट। ये कुछ और नहीं है, ये विस्कोसिटी कांस्टेंट है जिसको पॉइसे से डिनोट किया जाता है। इसका अगर आप ऐसा यूनिट निकालोगे तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगर इसको पास्कल में चेंज कर रहे हो तो आप जानते हैं पास्कल सेकेंड 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में अगर वही हो गया। और ये जो पास्कल जो मैंने आपको जो ये कांस्टेंट दिया है वो कांस्टेंट जो है हमारे जीन लुइस पॉइजलियम के नाम के आधार पर है, जिसका जो लास्ट वर्ड है पॉइजी, उसी के आधार पर उनको रखा गया है। ये 1 पॉइजी, ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हो ये पॉइजी कांस्टेंट है, ये हमारे लुइस लुइस साहब के नाम के आधार पर रखा गया है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट। 1 पॉइजी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 पॉइजी इज इक्वल टू 1 ग्राम इसको आप मीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर में। सेकेंड को टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकेंड ही है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 1 GM CM इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर कोई पूछेगा ये कितने मतलब कितना वैल्यू इसका बराबर होगा तो उसको आप बता सकते हो 1/10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 1/10 मतलब 1/10 हो गया 10 का इनवर्स किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसके ऐसा यूनिट्स हो गए। आप लोग ऐसा यूनिट्स अगर चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे आपको कि भाई साहब ये बताइए इसका ये जो विस्कोसिटी फोर्स है क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है या वीक फोर्स होता है या किस तरह का फोर्स होता है, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं ये जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना कम लिक्विड फ्लो होगा। ग्रेटर द विस्कोसिटी लेस विल बी द लिक्विड फ्लो। जितना ज्यादा विस्कोसिटी लिक्विड का फ्लो उतना कम। दूसरी बात कि ये ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग है, इवन ना ही वंडरवाल फोर्स जितना स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने आपको ये जो लेयर्स बताया ना, इस लेयर से आपको साफ पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रांग फोर्स है। ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपेयर कर पाएगा ना ही वंडरवाल बॉन्ड्स का। ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये बहुत ही वीक फोर्स है, वीक बॉन्ड है। ये नाइदर कंपेरेबल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर कंपेरेबल टू द वंडरवाल फोर्स। गॉट इट? तो ये जो है सबसे कमजोर फोर्स है। इसका प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ ग्लास कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय मेजरिंग द थिकनेस ऑफ विंडो पैन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। दिस बिकम्स थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप. Viscosity of liquid decreases as the temperature rises because at the high temperature molecules have high kinetic energy and can overcome the intermolecular forces to slip past one another between the layers. यही रीजन होता है। तुम लोग देखना कि अगर कोई ऑफिस वगैरह में जो कांच का जो लगा रहता है ना, वो अगर तुम 20 साल 25 साल में देखना कि ये जो है नीचे की तरफ इस तरह का हो जाता है और ये स्टार्टिंग में कैसा रहता है, स्टार्टिंग में इस तरह का रहेगा, राइट। और जैसे ही टाइम इंक्रीज होते जाएगा तो इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ फोर्स करेंगे और नीचे में इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। यही जो लेमिनार फ्लो मैंने बताया ये विस्कोसिटी है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Hope all of you are safe and please try to be safe. Don't forget to like and subscribe the channel. That's all for today. Thank you very much.